लेने के द्वारा भी हम चंगे होते हैं। So when you receive the word of God, your body, your intestine, your heart, everything तो sanctified. जब अपने जीवन में वचन डाल देते हैं तो उससे भी आपके शरीर के अंग चंगे हो जाते हैं। That is why in the every fellowship there is a word of God. इसीलिए हर संगति में परमेश्वर का वचन ही बांटा जाता है। So before that, let us pray something. तो आइए प्रार्थना करें एक बार। Okay, please, sister, brother, they don't know how to pray, so just pray with me. तो जैसे मैं बोल रही हूँ आप मेरे पीछे बोले, क्योंकि भी आप लोगों को शायद प्रार्थना करनी नहीं आती होगी। So Ruby, pray करना ठीक है? In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Lord Jesus, I come before you. यीशु मसीह मैं आपके सामने आती हूँ। Thank you for bringing me. धन्यवाद मुझे अपने घर में लाने के लिए। This is your house. ये आपका घर है। I am in your house. मैं आपके घर में हूँ। Lord Jesus. यीशु मसीह bless my life. मेरे जीवन को आशीष दे। Touch my life. मेरे जीवन को छुए। I need you. मुझे आपकी जरूरत है। Holy Spirit, I need you. पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। Jesus, I need you. यीशु मुझे आपकी जरूरत है। Come into my life. मेरे जीवन में आइए। You are my healer. आप मेरी चंगाई करने You वाले are my हैं। solving problem. आप मेरी परेशानी का हल देने You are वाले the हैं। one who can bless my life. आप ही जो मेरे जीवन को आशीष दे सकते Because हैं। you only the one who created me. क्योंकि आप ही ने मुझे बनाया है। Open my heart मेरे दिल को खोले to receive the word of ताकि God. मैं वचन को पाऊँ। Open my ear मेरे कानों को खोले to listen to the voice of ताकि God. मैं वचन को सुनने पाऊँ। Every other voice हर कोई और आवाज that has not come from जो God, आपकी ओर से नहीं है, I destroy उसको नष्ट करती from my हूँ। life, अपने जीवन from my से, heart, मेरे दिल से, from my mind, मेरे दिमाग from से, my thought, मेरी सोच से, every other thought, हर एक कोई और सोच, every other word हर कोई और वचन try to speak to me. जो मुझसे बात करना I चाहता है, destroy मैं उसको नष्ट करती in हूँ। Jesus' यीशु name. के नाम में Sickness, pain, बीमारी और दर्द, sorrow, कोई दुख, trouble, परेशानियाँ disturbing me. जो मुझे परेशान करती हैं, I sitting in your house. अगर आपके घर में बैठी हूँ, Listen to the word of God. मेरी मदद करके वचन को Every सुनो। disturbances हर कोई ध्यान भटकाने in my की चीज flesh, मेरे शरीर में, in my body, मेरी देह में, in my spirit, मेरी आत्मा में I मैं destroy नष्ट करती हूँ। in Jesus' यीशु के name. नाम में Boring, कोई बोर होने वाली difficult to listen to the सुनने word में of God. मुश्किल ही होना I cast मैं नष्ट out करती हूँ in Jesus' यीशु name. के नाम I में। invite the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को बुलाती हूँ Minister to me. ताकि मुझसे बात I करे। am in your आपके house. घर में हूँ पिता। Thank you, Jesus. मैं धन्यवाद for देती blessing हूँ me. मुझे आशीष In देने Jesus' के name. लिए यीशु के नाम में। Father, I thank you so much for the word of God that you have spoken to us. And I also, Father, my God, I have committed my life, my body, my soul, everything that come out from my mouth that should be come from you. I shall not speak my own understanding. And also I pray that God Almighty, your surrender, I completely surrender the altar, my entire life into your hand. I also surrender pretty the God who used me. Also, Father, use our Lord. One heart, one mind, one spirit, we are here. One Lord, one Savior, we are here. Everyone we gather in the one heart. Everyone we gather in the one mind, one spirit, one Savior, that is Jesus Christ. We come together in the name of Jesus. We worship together in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for the word of God that you have prepared for today. And you are going to bless us. You are going to touch us. You are going to transform us. Thank you, thank you. We are here to listen to your voice. And I surrender to you. Speak to us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So now today let us come to Mark chapter 9. खोलते हैं मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय। Yes, today we are going to speak about the nothing is not impossible with God. तो आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Yes, God can do anything in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। Amen. आमेन। Mark 9. Yes, Mark 9. Mark 9 verse 14. पढ़ते हैं मरकुस का सुसमाचार 9वें अध्याय के 14वें वचन से 65 पेज नंबर 9 to 29. नया नियम 65 पेज नंबर। Yes. Manish, after reading. Yeah, you can. 14 वचन से जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र की जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेंक भर लेता है और दांत पीसता और सूखता जाता है।
मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ही नहीं सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसको उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेंक बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। Amen. So today my topic is that all things are possible to him, to whom who believe in him. तो आज का विषय यह है कि जो विश्वास करता है यीशु मसीह में, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। All things are possible to him who believe. जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। So the person whom they believe, all things are possible. तो जो इंसान विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। See here there is we can see the three group of people. यहाँ पे हम तीन तरह के लोगों को देखते हैं। And the story you will see in the book of Mark chapter 17 also, Matthew 17 also. आप यही वाली कहानी मत्ती के 17वें अध्याय में भी So in देखते the हैं। beginning we are reading that one. शुरुआत में हमने मत्ती 17 से पढ़ाई And then की। also Luke chapter 9 verse 37 also. लूका 9 के 37 में भी यही कहानी लिखी But we है। will see in this chapter और Mark. आज हम पढ़े हैं मरकुस 9 से। So now we will see the disciple, हम देख रहे हैं एक तरफ चेले हैं and we will see the sick person and the father and the son. और एक जगह हम देखते हैं एक बेटा है जो बीमार है, उसके पिता उसके साथ आए And हैं। we will see Jesus. और तीसरी जगह पे हम And देखते we हैं will यीशु see को। crowd. और भीड़ भी है। And so in that crowd, Pharisees, Sadducees are there. और उस भीड़ के अंदर फरीसी और सदूकी लोग हैं। They also the scribe and Pharisee, the people gathered together. और उस भीड़ के अंदर पढ़े लिखे फरीसी लोग सारे भीड़ लगे खड़े हुए हैं। So the people were crowded and like this. बहुत भीड़ में लोग आए हैं। And then now, just like that time Jesus was not here. उस समय यीशु वहाँ नहीं थे। So now the father was just like our brother. जैसे पिता से हमारे जैसे भाई हैं। Brother, आपका नाम क्या है? भैया? और बताना? Yes, I know. आपका नाम क्या है? हाँ? Sajad. So now just like our brother Sajad has bringing his son. तो जैसे कि भैया सजान अपने बेटे को लेकर आए हैं, So now I just telling the story. तो ऐसी ही कहानी बता So रहे there हैं। is a man, एक भैया होते हैं, and then there is a man, and his son was sick. एक आदमी का बेटा बीमार होता है His son was, the sickness is that he didn't hear. और परेशानी क्या थी, उसके बेटे को सुनता नहीं He था, was a deaf, वो बहरा था and he was a dumb. और गूंगा भी था। He cannot able to speak. He cannot able ना to hear. बोल सकता था ना सुन सकता था। That sickness is demon. और वो Satan. बीमारी मतलब एक शैतानी आत्मा उसके अंदर थी, बहरेपन की और गूंगेपन की। So the spirit of dumb and the spirit of deaf. बहरेपन की और गूंगेपन की आत्मा उसके अंदर थी। And then also in his mouth flow, what is the saliva used to come, white and used to be flow. और वो जो बेटा था उसका उससे मुझे झाग निकलता था, थूक निकलता था। And this child was suffering so many years. और ये बच्चा कई सालों से बीमार था। See, he can't able to hear, he can't able to speak. ना ही वो सुन सकता था, ना ही वो बोल सकता था। So very difficult. बहुत मुश्किल हो रहा And था। when Satan entered, और जब शैतान उसके अंदर this घुसा, child sometimes jumped to the water, jumped to the fire. So many things happened. The family was so much controlling this. और उसका परिवार उसे बहुत संभालता था। कई बार जब शैतान की आत्मा उसके अंदर आती थी, वो आत्मा उसे आग में लेके कूद जाती थी, पानी में लेके कूद जाती थी। And you see, sometimes we think that that some people have a dumb, some people have a deaf, some people have a blind. We think that this is a disease.
कई बार हम देखते हैं लोगों को जो अंधे होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, हमें लगता है ये तो बीमारी है। And then also sometimes we have so many sickness that come. या हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं और हम मतलब कोई परेशानी होती है, हम सोचते हैं बीमारी है। But all these sickness are caused by demon spirit. लेकिन ये सारी बीमारियां शैतान की आत्मा की वजह से होती So now our sister Ruby has stomach problems. हैं। जैसे हमारी बहन रूबी को पेट में So परेशानी all है, these are the demons, the spirit of demons. ये सब शैतान की आत्मा जो है कारण पड़ती And है। this kind of things God can, only God can destroy. So this man, they are going to doctors and so many places, but this eye never healed. तो ऐसे ही ये आदमी अपने बेटे को लेके अलग-अलग जगहों पर जाता था, डॉक्टरों के भी जाता होगा, लेकिन अभी तक उसके बेटे को चंगाई नहीं So मिली। the family was suffer because of this eye. तो परिवार बहुत परेशान था इस बच्चे की वजह से। Then one day they know that Jesus was cast out demon. Disciples were cast out demon. Disciples were way to the ministry. Now they come back, and now this family, the father bring to the son to the disciple. तो इसके बच्चे के पिता ने सुना था कि यीशु मसीह चंगाई देते हैं, यीशु मसीह के चेले भी अलग-अलग जगहों पे जाके लोगों को चंगाइयां दे रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं। तो वो आदमी भी अपने बेटे को लेके चेलों के पास पहुंचा। So now that moment Jesus is not there. उस समय यीशु वहां नहीं थे, सिर्फ चेले खड़े थे, Only the disciples. सिर्फ चेले। Then when they bring to तो disciples, जब चेलों के पास लाए, now the disciple cannot heal this sickness. अब चेलों ने कोशिश तो करी उस आत्मा को निकालने की, लेकिन वो आत्मा And जाती they नहीं। cannot able to cast out the demon. वो बार-बार धक्का मतलब बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन कुछ वो जा ही नहीं रहा। Then all the crowded together. तो सारा भीड़ इकट्ठी होके भाई You क्या हो are रहा the है? disciple of Jesus Christ. You can't able to cast out the demon. और सारी भीड़ क्या सोच रही है, अरे ये यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा निकाल ही नहीं पा रहे, कैसे Jesus चेले हैं? healed the blind, Jesus healed the lame, Jesus, and you are walk with them, and you also cast out demons. So many things happening, and you can't able to heal this eye. तो उन्होंने सोचा भीड़ ने कि अरे यीशु मसीह सारी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारियों को ठीक करे, मरों को जिंदा कर देते हैं, चेलों ने भी चमत्कार करने शुरू कर दिए हैं, तो ये मेरे बेटे को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? So when you see this chapter 9 verse 14, 15, see the crowd will gathering. अगर हम 9 में देखें 14-15 वचन देखेंगे तो कहेंगे बहुत बड़ी भीड़ वहां पे खड़ी हो गई। Then Pharisees, scribes, they are questioning the disciple of Jesus. तो फरीसी और सदूकी लोग यीशु मसीह के चेलों को प्रश्न पूछ रहे थे, They are embraced, they are ashamed because they cannot cast out the demon. और चेलों को शर्म आ रही थी कि भाई इतनी प्रार्थना के बाद भी ये दुष्ट आत्मा निकलती क्यों नहीं है? And the child was doing so much, Satan was doing so much, and they were ashamed. और वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन शैतान तो उस बच्चे को इधर उधर घुमाए जा रहा था, मुंह से झाग निकले ही जा रहे हैं। Then people, the scribe, Pharisee, the other religious people, they questioning, your master doing, and you are doing, why you can't able to cast out? They put them into shame. तो फरीसी लोग क्या सोच रहे होंगे कि अरे यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह तो इतना कुछ करता है, तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे। Then Jesus suddenly entered. तो जैसे फिर वहां पर यीशु मसीह आए, And when Jesus saw, the people saw Jesus is entered. और जब लोगों ने देखा अच्छा यीशु मसीह तो आ गए, Then Jesus come. यीशु मसीह आए, Then Jesus asked them, what is happening? यीशु मसीह ने कहा अरे भीड़ क्यों लग रही है, क्या हो रहा है यहाँ Verse पर? 15, 16. What discussion going अरे on? क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर? In that, verse 16, Jesus said, what are you discussing with them? तो यीशु मसीह ने पूछा कि अरे आपस में क्या बातचीत कर रहे हो तुम? The disciples were crowded, and people were crowded, and Pharisee, religious people, leader people asking questions to the disciples. क्योंकि यीशु मसीह देख रहे बहुत बड़ी भीड़ है, चेले भी खड़े हैं, प्रश्न बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है? Jesus entered. तो यीशु आए, Jesus said, what happened? यीशु कह रहे क्या बात हो रही है? What discussion is going on? अरे क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? What is the problem? कोई परेशानी है क्या? Tell me. मुझे बताओ। Then the father of the side, तो उस बच्चे के पापा ने क्या बोला? he stand up in front of the people. वो खड़ा हो, मेरी बात सुनो। In the crowd, भीड़ में he tells Jesus, वो यीशु के पास आया, and you see, I bring my son. My son is dead, my son is dumb, he cannot able to do, and you disciple cannot heal. वो कह रहा अरे यीशु मसीह सुनो मेरा बेटा गूंगा भी है, बहरा भी है, वो कुछ मतलब परेशान है, मैं उसको लेकर आया आपके चेलों के पास, चेले इतनी देर से घंटों से लगे हुए हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल ही नहीं पा रहे। So the father was telling to Jesus, तो पिता जो है यीशु मसीह से उनके चेलों की कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। and Jesus said, bring the child. यीशु कह रहे हैं लेकर आओ उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ। But the one thing here, let us stop in that point, let us see here. Jesus entered when they are accusing the disciple. तो इसका मतलब यीशु मसीह कब आए जब चेलों के ऊपर वो चेलों की शिकायत हो रही थी। So the disciples were ashamed and they not able to say anything because they cannot cast out the और आप demon. सोचिए कि चेलों को कैसा लग रहा होगा, सारी भीड़ उन्हें बोल रही तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। They may be shouting in the name of Jesus, cast out, go out, but they didn't go out. आप सोचो उस समय क्या हो रहा होगा कि सारे चेले क्या बोल
बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। वह दुष्ट आत्मा कह रही मैं तो नहीं जा रही। The demons was not going out. तो शैतानी हमको तो निकलने को ही नहीं दे रही। But in that same moment, लेकिन उस शर्मिंदगी के समय में Jesus entered. यीशु ने देखा कि मेरे चेलों की बेइज्जती हो रही है, कह रहे चलो। So here we have some lesson. यहाँ हमने क्या सीखते हैं? See, Jesus doesn't want his children to be ashamed, put into ashamed the demonic people. यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि दुष्ट आत्माओं के सामने मेरे बच्चों की बेइज्जती हो। So Jesus come and protect the disciples. तो यीशु मसीह उस समय आए जब उनके चेलों पर इल्जाम लगाया जा रहा था। And Jesus come and protect the people. और यीशु मसीह आया और उन्होंने उनको बचा लिया। Because if Jesus is not coming, these disciples they are going to be condemned and they are going to be so much ashamed. अगर यीशु मसीह सही समय पर नहीं आते तो यीशु मसीह के चेलों पर वो लोग उल्टा सीधा बोलते रहते, उनकी शर्मिंदगी बढ़ती So जाती। the crowd was shouting and the crowd was telling them that you are foolish, you can't able to do nothing, and you must start doing, but you are nothing. So they went like that. Jesus come and protect. तो भीड़ क्या कह रही होगी कि यीशु मसीह के चेलों से कि अरे देखो तुम्हारे चेले तो कुछ कर नहीं पा रहे, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम कब से लगे हुए हो। तो उस समय ही यीशु मसीह पहुंचे। So now Jesus come and protect the disciples. और जब यीशु मसीह ने देखा कि ऐसा हो रहा है, यीशु मसीह आगे चेलों को बचाने के लिए। So here is that Jesus always protect us. इसका मतलब यीशु मसीह हमेशा हमें बचाते हैं। Jesus doesn't want we are the disciple of God. हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। The people who believe in Christ, you are the disciple of जो God. यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनको चेला कहा जाता है। And Satan will always try to put you into shame. You are nothing. You are foolish. You are praying, but God is not answering. You are doing so many. You go to church. Your family are not well. So many a time people accuse, society accuse, nation accuse, family members. When you believe in Jesus Christ, so many things will come in your तो life. आप देखिए आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है, प्रार्थना ही करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अंदर से शैतान की आवाज आती है, कब से तो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं, बाइबल तो कितने महीनों से पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। परिवार वाले भी कहते हैं कि कितना उल्टा उल्टा कि तुम कब से प्रार्थना कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, पर तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। So sometimes people accuse us. तो कई बार लोग हमें इल्जाम लगाते हैं, हमारा मजाक Sometimes बनाते people हैं। will say, "Don't go to church." कई बार तो लोग बोलेंगे अरे चर्च ही जाना छोड़ दो। Or sometimes people will say, "Christian people are nothing." कई बार लोग बोलेंगे अरे मसीह लोग तो कुछ नहीं होते, बेकार है। Sometimes they say, "We go to church, but our healing never take place." तो कई लोग कहते हैं अरे हम तो कब से चर्च जा रहे हैं, हमारे जीवन में तो कोई बीमारी ठीक ही नहीं And होती, we are never changed. हम तो बदलते भी नहीं है। But in that, now the disciple were accused like that, and Jesus come. और उस समय जब चेलों की बेइज्जती हो रही थी, उन्हें बुरा भला बोला जा रहा था, तो उसी समय यीशु मसीह वहां पहुंचे। So if you really a child of God, अगर आप सच में परमेश्वर की संतान हैं, when people accuse you, जब लोग आपके बारे में मजाक उड़ाएंगे you are unable to heal people, और आप लोगों को चंगाई नहीं कर पाएंगे, or God is not answering या prayer, परमेश्वर किसी लोगों की प्रार्थना पर जवाब नहीं you दे are रहा taking होगा, fasting, going to church every day, आप उपवास कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं हर रोज, but not everything is no fine. लेकिन आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। So if people accuse like that, अगर लोग ऐसा कहते हैं, but Satan is the one so in that don't be feel that you are rejected, don't feel that God is not with you. और उस समय आपके मन में शैतान नकारात्मक चीजें डालेगा, तो ये ना सोचे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। Yes, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Amen. आमीन। So that is the things that now. So now they were accused and God come and defend for the disciple. तो इसलिए यीशु मसीह आए और अपने चेलों को उन्होंने बचाया। And now Jesus entered. और यीशु मसीह आए And Jesus told them that, okay, bring that child. और यीशु मसीह ने कहा कि उस बच्चे को ले आओ। So now verse 17 says, the crowd were answered and the teacher, I brought my son, but my son cannot able to ये heal. 17वें वचन में क्या लिखा है? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगे और की आत्मा है, तेरे पास लाया था। Then now what the disciple Jesus told them. तो यीशु ने क्या कहा? Jesus said, okay, bring the child. यीशु ने कहा ठीक है, उस बच्चे को लेकर आओ। And then they bring to Jesus Christ. और वो यीशु के पास उस बच्चे को लेकर आए। But before that, लेकिन उससे पहले Jesus was telling to the people, यीशु लोगों को क्या बता रहा था? the scribe, the son, the father, the disciple. यीशु मसीह सारे उस बच्चे को, उसके पिता को और सारी भीड़ को क्या बता रहे थे? And Jesus said to them, यीशु ने कहा in verse 19, 19वें he वचन में answered him and said, ये कहा, oh, you faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. So now Jesus was scolding them. तो यीशु मसीह ने उन्हें अच्छे से डांट लगाई और कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। So now when disciples cannot able to cast out this dumb and the dead. आप ये देखिए, यीशु मसीह के चेले क्यों उस
बहरे और गूंगे बच्चों को ठीक नहीं कर पाए। Here we can see in the Bible. यहाँ बाइबल में क्या देखते हैं? They didn't have faith in Jesus. उनका विश्वास यीशु में नहीं था। So the disciples were following Jesus Christ. यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के लिए चलते तो थे, But they didn't have faith. पर विश्वास यीशु में नहीं था अभी तक। So they were praying and they were saying, be healed, cast out demon. But they cannot, they said, Satan go, but they cannot cast out, the demon cannot वो come out. चिल्ला रहे थे, शैतान चला जा चला जा चला जा, दुष्ट आत्मा चली जा, पर वो जा ही नहीं थी, But they have no faith. क्योंकि उनका विश्वास यीशु में नहीं था। See, faith is very important as you come to God. आप ये देखें कि विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं तो। See, if you really want to have in your life miracle, if you really want to have in your life signs and wonder, if you really want to have in your life success and prosperity, faith is very, very important. अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में विश्वास होना चाहिए। Without faith, nothing is impossible. बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। The Bible says in the Matthew, if you have the mustard seed of faith in Matthew chapter 17, then you can move the mountain. तो मत्ती के 17वें अध्याय में लिखा है कि अगर राई के दाने के बराबर भी आपका विश्वास है, तो आप एक बड़ी से बड़ी परेशानी को भी हल कर सकते हैं। Then if you have the aloo, that big aloo, that kind of faith, then you can so many things you can do. If Jesus said mustard seed of faith, the seed, that faith also you can have, then you can move the mountain. परमेश्वर ने तो ये कहा है कि अगर आपको राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो आप बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। तो अगर आपका एक आलू का इतना विश्वास है, मतलब थोड़ा बड़ा विश्वास, तो सोचिए आप कितने बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। See, if you small seed of mustard seed is very small. आप ये देखिए राई का दाना होता ही कितना सा है। God said if you have that faith, परमेश्वर तो कह रहे हैं कि उतना भी विश्वास है तो भी पहाड़ हिला सकते हैं। then you can say to the Himalaya, go out, that Himalaya will go away. तो आप हिमालय के पहाड़ को बोलेंगे ना साइड हो जाए, तो वो भी साइड हो जाएगा। So now these people, they cannot able to cast out demons because they didn't have faith in Jesus Christ. आप ये देखें यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा को इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि उनका यीशु मसीह में पूरा विश्वास That नहीं is why था। see Jesus is we think that Jesus is compassion, Jesus is loving, but sometimes Jesus also angry and scolding them. आप ये देखें, हमें लगता है यीशु मसीह तो प्रेम से भरा परमेश्वर है, करुणा करता है, दया करता है, लेकिन कभी-कभी वो डांटता भी है और गुस्सा भी करता है। Jesus always, he also teach them, train them, rebuke them. कभी-कभी यीशु मसीह से उनको ट्रेन करता था, सिखाता था, तो डांटता भी था और सुधारता भी था। So now here verse 19, Jesus was calling to the disciple, you fellas, you generation, and no having faith in me. तो यहाँ पे 19वें वचन में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहा है कि तुम अविश्वासी लोगों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। Jesus is that, fearless generation. वो कह रहे हैं अविश्वासी तुम्हारी पीढ़ी। The same thing Jesus is not all talking about those days now also. अगर आज हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उस समय, यीशु मसीह आज हमसे भी यही कह रहे हैं। Jesus said many times, we God bless us, God heal us, but our faith, we इतना विश्वास नहीं होता. So we have, sometimes faith is going up and down. कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम देखते हैं चर्च में या चर्च के बाहर भी परमेश्वर के चमत्कार, चंगाइयां, पर फिर भी हमारा विश्वास कई बार तो इतना बड़ा होता है, कई बार इतना सा रह जाता है। Sometimes God answer your prayer. कई बार आप परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब देता है, Sometimes God heal you. आपको चंगाई भी देता है। Sometimes you go and perform miracle. कई बार आप खुद भी बाहर जाके चमत्कारों को But करते हैं, sometimes things are not happening. पर कई बार चीजें नहीं होती हैं। But that time the Bible says, these disciples, they went out and preached the gospel, they cast out demons, but in this particular moment, they cannot able to do it. आप ये देखिए, इस अध्याय से पहले यीशु मसीह के चेले बाहर जाके सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को चंगाइयां देते हैं, चमत्कार करते हैं, लेकिन इस समय वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए Because they didn't have faith in Jesus. क्योंकि उनका विश्वास यीशु में नहीं था। They have the faith that they themselves, they think that without God we can do it. तो हो सकता है कि वो ये विश्वास करते हैं कि हम कर सकते हैं। Oh, I cast out yesterday demon, now I can do it. उन्होंने सोचा होगा, अच्छा हम कल तो गए थे दुष्ट आत्मा निकालते, आज भी हम कर सकते हैं। So now they are not dependent on God, they are not confident on God, they confident by themselves. अब उनका विश्वास परमेश्वर में ना होकर खुद में है कि जो हमने कल किया तो आज भी हम कर सकते हैं। See, sometimes when you do it always, even me, normal become then we think that I can do without God. When you do that, it is without God we can't do nothing. कई बार क्या होता है कि हम जब एक चमत्कार करते हैं या एक बार परमेश्वर के कोई भी काम करते हैं, वो सुसमाचार बांटना ही जब एक बार कर लेते हैं, 2 बार करते हैं, तो अगली बार हमें लगता है कि हाँ हम तो खुद कर सकते हैं, हमारे
हमारे अंदर सामर्थ्य आ गया है। So now sometimes God bless you. We think that you are now you are not depend on God. You are not confident in God. Oh, Prabhu mera saath hai. So now when you try to do your own, you try to do your own power, own wisdom, and without God we can't do nothing. तो कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के नाम से कुछ करते हैं, थोड़ा करते हैं, परमेश्वर ने आज आशीष दी, कल भी कोई आशीष दी, तो परसों हमें लगता है कि हाँ अब तो हमारे अंदर ही है, परमेश्वर ने बिना भी हम कर लेंगे। So now we try to confident our faith, our the trust, our focus try to lose, and now try to depend ourselves. और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो फोकस, हमारा केंद्र है ना, परमेश्वर से हट के वो हमारा खुद पे हो जाता है। But without God we can't do nothing. पर परमेश्वर के बिना हम नहीं कर सकते। So now the disciples cannot able to cast out. They thought that they can able to do it. तो चेलों ने क्या सोचा कि हमने कल किया था, आज भी कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। And they can't able to do, and Jesus was so angry. और यीशु मसीह को गुस्सा आया कि भाई तुम मेरे चेले होकर भी तुम दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। You faithless generation. मतलब तुम अविश्वासी लोग हो। And how long I need to be with you? अरे कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं? And how long you need to be with me? कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? I need to depart it. I need to go. अरे एक दिन मुझे जाना है, तुम सीख जाओ जो मैं तुम्हें So सिखाना you चाहता हूँ। should have faith whether I am there or not. तुम्हें चाहे हो या ना हो, तुम्हारे अंदर विश्वास तो रहना चाहिए। And you should have faith in God. विश्वास रखो प्रभु में। So now that you did have faith and you are the faithless generation. और तुम विश्वास नहीं रखते, इसलिए अविश्वासी लोग हो तुम। And God was scolding the disciples, the crowd, and God is also scolding to us today. और यीशु मसीह उन चेलों को भी डांट रहे थे और आज वही डांट हमें भी पड़ रही है। See, sometimes you pray, sometimes you come to God, but if you didn't have faith, nothing will not happen. कई बार हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। Without faith, you will never receive God miracle, God healing. बिना विश्वास के हम परमेश्वर की ना चंगाई पा सकते हैं, ना ही उनका The चमत्कार Bible पा says, सकते हैं। by your faith you are healed, and then by your faith you see the power of God. बाइबल बताती है कि अपने विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर का सामर्थ्य देखते हैं, पर विश्वास के द्वारा ही हम चंगे होते हैं। And the 1 Corinthians chapter 5 verse 7. पहला कुरिन्थियों के 5 के The 7 Bible में says, don't walk by sight but walk by faith. बाइबल बताती है कि जो तुम्हें दिख रहा है उसके अनुसार नहीं, लेकिन जो नहीं दिखती मतलब अनदेखी चीजों के अनुसार चलो। So we should walk by faith, not walk by sight. तो जो दिख रहा है उसके अनुसार नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास के द्वारा चलो। So that is why God saying, when you are live on this anything that you do, we need to walk by faith, not to walk by तो sight. इस दुनिया में हम चाहे कुछ भी करें, कहीं पर भी चले, हमें जो दिख रहा है उसके अनुसार निर्णय नहीं लेना है, लेकिन अनदेखी चीजों के अनुसार लेना है। So the faith is very important. विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। Without faith, you will never receive healing. बिना विश्वास के आप कभी भी चंगाई को नहीं पाएंगे। Whoever come to Jesus, जो भी यीशु के पास आता है, you must have faith. पहले आपको विश्वास होना चाहिए। Whoever come to Jesus, जो भी यीशु के पास आता है, we must faith that Jesus is alive, Jesus is a healer, Jesus is your salvation, Jesus is the miracle working God. When you have that faith only, you will receive God healing, God miracle, God power. तो अगर आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, चमत्कार मांग रहे हैं, चंगाई मांग रहे हैं, तो पहले आपको ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह जिंदा है और मेरे सामने। Without faith, you will never receive God healing. बिना विश्वास के परमेश्वर के चमत्कार और चंगाई आप कभी नहीं पा Without सकते। faith, you will never see God miracle. बिना विश्वास के आप परमेश्वर के चमत्कारों को नहीं पा सकते। Without faith, you will never please God. बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश भी नहीं कर सकते। So now disciples cannot able to, they didn't have faith. That is why God said, how long I need to be with you. तो चेलों में विश्वास नहीं था, इसलिए यीशु मसीह उनको डांटा कि अरे अविश्वासी लोग कब तक मैं तुम्हारे साथ So रहूं। whoever come to God, तो जो भी प्रभु में आता है, if you come to church, अगर आप चर्च जा रहे हैं, if you read Bible, बाइबल पढ़ रहे हैं, if you pray, प्रार्थना कर रहे you हैं, must have faith in God. तो आपको परमेश्वर में विश्वास होना जरूरी When है। you have faith and pray, जब विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, then God will answer your तो prayer. परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है। When you faith and come to church, जब विश्वास करके कलीसिया में आते हैं, then you will be healed. तो आप चंगे हो Your जाएंगे, problem will be solved. आपकी परेशानियां हल हो When जाएंगी। you faith and come and ask Lord, I have this problem, remove away, then God will heal. जब विश्वास करके परमेश्वर के सामने आते हैं कि परमेश्वर ये परेशानी से निकाल दिए, परमेश्वर निकालता भी है, Without faith, पर बिना विश्वास के you will never have the healings and miracles and signs and wonders. आप कभी भी चंगाइयों को, चमत्कार और विज्ञान So नहीं now देख disciples didn't have faith, that is why they can't able to cast out सकते। the तो चेलों demon. में विश्वास नहीं था और इसीलिए वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे। And then the father who bring the son also didn't have faith that God can heal. और जब पिता बच्चे को लेकर आया था, उसमें भी विश्वास नहीं था कि परमेश्वर से ठीक कर सकता है। And the disciple, he didn't have faith that but he just bring the
child. उसमें विश्वास नहीं था, लेकिन सिर्फ वो बच्चे को लेकर आ गया। So that is why God was scolding him also. इसलिए यीशु मसीह उस आदमी को भिड़ंत लगा रहे हैं। And then now let us verse 20 say, then they brought him to Jesus, and when he saw him, immediately the spirit confused him and fell on the ground and were foaming the mouth. And he asked his father how long this had happening to him. And he said to him, from the childhood. And he offered and thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But you can do not anything, and compassion on us and help us. So now in the verse 20 and then 21, what the Bible says. Now they brought to Jesus, and then now the Satan tried to do so many things, jumping up and down in the syllabus come out, and so many things that Jesus said bring him, and now the Satan is rejected. तो जैसे ही यीशु मसीह यहाँ पर आए तो शैतान ने उनको देखा और वहीं पर उसने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने को दिखाना शुरू कर दिया। See, before Satan leave you, sometimes they manifest it. कई बार क्या होता है, शैतान आपके शरीर को छोड़ने से पहले वो अपने आप को दिखाता है कि मुझ में भी ताकत है। See, now this side was before they brought to Jesus, and this Satan was possessed him, and so many things happening. तो जैसे यीशु मसीह वहाँ पर आए तो उससे पहले उस आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, And he was jumping up and down, and his mouth full of syllabus come out, and so many things sold to Jesus. और यीशु मसीह जब वहाँ पर आए तो दुष्ट आत्मा उनको देखकर उस बच्चे को और घुमाने लग गए, लेटने लग गया, बच्चा मुड़ने लग गया और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा थूक आने लग गया। Then Jesus said, how many years and what, how long this child is suffering? Jesus was asking to तो यीशु मसीह ने उस बच्चे के पिता से पूछा कि कब से इस बच्चे की परेशानी चल रही है। Then the father said, since the childhood this child is happening like this. और बच्चे के पिता ने बोला कि अरे बचपन से ही ऐसा ही है। See, sometimes one with sickness we fed up. कई बार क्या होता है कि एक हफ्ता बीमारी होती है तो थक जाते हैं, भाई चलता And नहीं some है। people in your house, somebody is sick, you're taking care of them. आप अपने घर में बंदा बीमार है उसका ध्यान रख रहे हैं। 1 month, 1 week, 2-3 months, when the person is continuously sick, we fed up. कोई इंसान आपके घर में बीमार है, उसे 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और हम परेशान होने लग जाते हैं। We say, oh, we're taking to here, there, nothing happened. We try to neglect, we try to take away, we try to no more pain, no more love, no more compassion. तो धीरे-धीरे क्या होता है, जो शुरुआत में आपके जीवन भर में उसके लिए प्रेम और करुणा होती है, धीरे-धीरे कम होती है। आपको लगता है क्या मैं कब से इसको ले लेके घूम रहा हूँ, 3 हफ्ते हो गए, ठीक तो हो ही नहीं रहा है। So maybe this father was, almost give up. तो हो सकता है इस पिता ने भी करीबन हार मान ही ली। This child was suffering since childhood. ये बच्चा तो बचपन से ही बीमार था, He can't able to hear, वो सुन नहीं सकता, he can't able to speak. ना बोल सकता था, And demons used to do, and he used to do so many satanic things. और बहुत सारी शैतानी चीजें करते थे। Even though he didn't hear, वो सुनता तो नहीं था, even though he can't speak, बोल भी नहीं but सकता था। sometimes he jumped to the fire, sometimes he jumped to the water. लेकिन कई बार पानी में कूद जाता था, कभी-कभी आग में कूद जाता था, Because of Satan. शैतान की वजह से। And when in front of Jesus, so this Satan was making like that. और यीशु के सामने वो दुष्ट आत्मा आई और वैसे ही जैसे ही बच्चे को इधर मोड़ने लग गई। See, sometimes when we see the church also, कई बार हम कलीसिया में भी देखते हैं ये when चीजें। Satan about to go, जब शैतान शरीर से बाहर निकलने वाला he होता used है, to manifest in the वो body. अपने शरीर, वो उस इंसान के शरीर के अंदर दिखाता है कि मैं हूँ। That the Satan cannot able to stay, the fire comes. शैतान उस शरीर में रह नहीं सकता कि परमेश्वर की आग उसके सामने That is why है। they are, fall down. They are, they are struggle to, because they know that they are going to go out. So before they go out, they will do so many things. तो दुष्ट आत्मा को पता होता है कि यीशु मसीह की आग आ गई है, हमें निकलना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप निकलने से पहले वो शोर मचाती है, उस शरीर को परेशान करती है। See, we see in this book also, before Jesus was, when they bring in front of demons, and in front of Jesus Christ, demons were manifest into their child. आप ये देखिए, यीशु मसीह के वहां आते ही दुष्ट आत्मा अपने आप को दिखाने लगी उस बच्चे के अंदर। And then now Jesus, what Jesus said? फिर यीशु ने क्या कहा? Jesus, and then even the, verse 22, I read pretty. 22 में देखते हैं, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकते है तो हम पर तरस खाकर उपकार कर। See, now the father said, please compassion on us. तो पिता ने कहा प्लीज हम पे करुणा कर दो, Help us. हमारी मदद कर दो। Father, and he told to Jesus, please help us. और यीशु ने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ कर सकते हो भाई, तुम ही कर दो, And please compassion with हम us. पे करुणा करो। He was requesting to God. वो यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहे थे And he was telling to Jesus, please help us. I can't do nothing. I cannot help. I have become helpless. और यीशु से कहा कि मैं तो कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, आप ही मेरी मदद कर दो। See, in the Bible, help us is very, very, going down that
this person as he can't do nothing, and he tells to Jesus, please help us, I can't do nothing, and we cannot heal, and we don't want this child to be died. This child is in the Mark side and the Luke side, only one son he had. आप ये देखें मरकुस में लूका में बताया गया कि इस आदमी का एक ही बच्चा होता है जो शुरुआत से परेशानियों से ग्रसित होता है. So the child doesn't want to lose because only he have only one son. आप ये देखें कि उस आदमी का सिर्फ एक ही बच्चा होता है जिसे वो खोना नहीं चाहता. And so that he was telling to Jesus, please compassion with us. और इसलिए वो यीशु से कहता है कि प्लीज मुझ पे करुणा करो. And help us. हमारी मदद करो. So now when you come to Jesus, तो जब आप यीशु के पास आते हैं, sometimes God wants us to pour our heart to Him. कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने दिल को पूरा खोल के उनके सामने रखते हैं. So now this man was poured out his heart to God. ऐसे ही इस आदमी ने अपना दिल खोल के परमेश्वर के सामने रख दिया. But see, if you never pour out your heart to God, God will never touch. लेकिन अगर हम अपना दिल खोल के परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे तो परमेश्वर का दिल आप नहीं छू पाएंगे. God is looking at your heart. परमेश्वर आपका दिल ही देखता है. God is not looking your mouth. परमेश्वर का मुंह नहीं देखता. Sometimes our mouth blah blah, please Lord help us, but your heart is far away कई from बार क्या God. होता है मन में ही नहीं कि मुझे परमेश्वर मदद कर दो, धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना तो कर देते हैं लेकिन परमेश्वर जुड़ नहीं पाते. But our heart is far. लेकिन हमारा दिल परमेश्वर से कहीं दूर होता है. Sometimes we are sitting in the church, कई बार चर्च में बैठे होते हैं but your heart is not in the पर church. दिल चर्च में नहीं होता है. Then you will never receive God's blessing. तो आप परमेश्वर के आशीष को नहीं पा पाएंगे. Sometimes you read Bible, कई बार हम बाइबल ही पढ़ते हैं but your heart is moving everywhere. पर दिल और दिमाग तो घूम रहा है सब जगह पर. Then God never bless तो you. परमेश्वर कैसे आशीष देगा? God is not looking our mouth, our eyes. He is looking our heart, our spiritual heart, spiritual eyes, spiritual mind. परमेश्वर हमारे बाहरी आंख और मुंह और कान को नहीं देख रहे लेकिन हमारे आत्मिक आंखों और आत्मिक कान और आत्मिक मुंह को देख रहे हैं. Sometimes people will pray loudly, but their heart are far away from कई बार God. आप देखिए लोग बहुत सुंदर बड़ी लंबी और तेज प्रार्थना करते हैं पर उनका दिल परमेश्वर में नहीं होता है. Their heart are moving outside, उनका दिल कहीं और ही घूम रहा but होता their mouth are bubbling. है पर मुंह तो बहुत अच्छा चलता है. There is a God, rebuke the Pharisee that you don't pray like a Pharisee people in the streets shouting, screaming. इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा कि फरीसियों की तरह बड़बड़ मत करते रहो. And so now Jesus was, this son, the father was telling, have mercy on us and please heal my child. तो पिता ने कहा कि मुझ पे दया करो, मेरे बच्चे पे दया करो और चंगाई दे दो. So he was poured out his heart. तो अपना दिल पिता ने अपने यीशु मसीह के सामने रखा. He said, Lord, help us. उसने कहा कि यीशु मसीह हमारी मदद करो. In verse 22. 22 में Without you, I cannot do nothing. आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता. Doctor cannot do. डॉक्टर भी नहीं कर पा रहा. Medicine cannot heal. दवाइयाँ नहीं कर पा रही. Now I am hopeless. अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है. I need you. मुझे जरूरत है आपकी. Please help my son. फिर बेटे को मदद करो. And so now this man was bowed down and worship and begging, asking तो God. इस आदमी ने घुटनों पे आके यीशु से कहा कि ठीक कर दो. Sometimes our life we need to do like that. कभी-कभी हमें भी अपने जीवन में ऐसे When ही you करना come to चाहिए. God, जब परमेश्वर के पास we आए should pour out our heart हमें अपने पूरे दिल को खोल देना चाहिए and we should come with faith. और विश्वास जताना When चाहिए. you have faith, जब विश्वास होता है, every situation that you have, हर एक परिस्थिति जो आपकी it होगी will just go away वो चली जाएगी. without a claim. मेरा कोई परेशानी So now this man telling him to God to help mercy upon तो him. इस आदमी ने यीशु मसीह से कहा कि मुझ पर दया करो. And then that what verse 22. And offer him and throw him both into the fire, and then so he asking him then verse 23 the Bible says Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believe. Amen. तो 23वें वचन में यीशु ने लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है. करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है. So now this the son father was telling them, telling him, have mercy on me. तो पिता ने कहा कि हम पर दया करो. Then Jesus replied, फिर यीशु ने क्या कहा? if you believe, अगर तुम विश्वास करते हो, if you have faith in me, अगर मुझ में विश्वास है, if you believe in me, अगर आप मुझ में विश्वास करते हो and if you believe and come to me, और विश्वास करके मेरे पास if आते you हो have a faith in me, और मुझ पर भरोसा रखते हो, see, if you can believe, all things are possible to him who believes. तो जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ ही मुमकिन है. See, the Bible says all things can possible who believe. तो बाइबल बताती है जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ मुमकिन है. But the person who didn't believe, the person who didn't have faith, everything is not possible. लेकिन जो इंसान विश्वास ही नहीं करता उसके सब कुछ मुमकिन नहीं है. Jesus said it is a possible, impossible thing can be a possible the person who believes. जो इंसान विश्वास करता है उसके लिए असंभव चीजें
particularly God said that the person who believe and come to Jesus, who believe and pray, who believe and come to come for church, who believe or come for healing, who believe in reading Bible, that you can do impossible thing to make तो possible. यहाँ लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब अगर आप प्रार्थना करते बाइबल पढ़ते हैं लेकिन विश्वास भी करते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। But if you didn't believe in Jesus, लेकिन अगर यीशु में विश्वास नहीं है, nothing will not happen to कुछ you. नहीं होने वाला। Healing will never take चंगाई place. भी नहीं होगी, Blessing will never आशीष receive. भी नहीं आएंगे। But the Bible says, if you have believed in me, तो बाइबल बताती है, यीशु कह रहा है कि If अगर you आप have विश्वास faith in करते हो, me, भरोसा रखते हो, nothing is not तो impossible. नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। Doctor say you will die. डॉक्टर बोलेगा तू मरने वाला है, Doctor say your son, your daughter, yourself cannot do nothing and you will be died. तो डॉक्टर बोलता है कि आपका बेटा आप मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। But if you believe in लेकिन Jesus, अगर आप यीशु विश्वास करते हैं, that situation, उस परिस्थिति में God can turn around. परमेश्वर बदल सकता है An impossible thing can make possible. और असंभव चीजें संभव हो सकती है। The person who believes. जो विश्वास करता है उसके लिए। That is why that sentence is very important. In verse 23 is very important. तो इसलिए 23वां वचन बहुत ज्यादा जरूरी है The person who believes, कि विश्वास करने वाले they के will लिए see miracles. सब कुछ हो सकता है। They will see healing. वो चमत्कार को They will देखेंगे, see miracles. चंगाइयों को देखेंगे, विज्ञान को देखेंगे, Impossible thing you can make असंभव possible. चीजें संभव हो जाएंगी। But the person who did not believe in Jesus, लेकिन वो इंसान जो यीशु में विश्वास नहीं करता, how long, how many a time, 40 days, 100 years, you take fasting or चाहे आप something. 40 नहीं 100 दिन का उपवास भी कर लो, कुछ नहीं होगा। But the person who believe in Jesus, लेकिन जो इंसान यीशु में विश्वास करेगा, who have faith in जो Jesus, यीशु भरोसा रखेगा, just a 1 minute, सिर्फ 1 मिनट में, just a second, 1 सेकंड में every problem हर एक परेशानी can be destroyed. नष्ट हो सकती है, Every sickness हर एक बीमारी can be healed. नष्ट हो सकती है, Every issue हर एक इशू can be go away. जा सकता है, Every problem हर एक परेशानी can be bring solutions. सॉल्यूशन भी ला सकती है। So the faith is very तो important. विश्वास बहुत बहुत जरूरी है। Without faith, you will never see God. बिना विश्वास के प्रभु को नहीं देख सकते। Without faith, you will never receiving miracles. आप परमेश्वर के चमत्कारों को नहीं So पा now सकते। Jesus was telling to the Father, यीशु ने पिता से कहा, if it is possible and the person who believe in me. जो इंसान विश्वास करता है मुझ में, So now if you believe, अगर तुम विश्वास करते you हो will see the miracle of तो God. आओ परमेश्वर के चमत्कार को देखो। So Jesus was telling to the Father, यीशु ने पिता से कहा, and then verse 24. 24वें वचन में लिखा है, Immediately, उसी समय the father cried out and said, "Dear पिता- Lord, I believe. Help my unbelief." उसने कहा कि पिता मेरे विश्वास पे विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय करो। See, this man, even the father was unbelief. That is why he didn't receive the miracle when disciples were there. तो अविश्वासी थे उसका पिता, तभी जब चेलों ने प्रार्थना करी तो चमत्कार नहीं हुआ, Because this father also unbelief in Jesus. क्योंकि इस पिता ने भी यीशु में विश्वास नहीं किया। So in that moment, Jesus said that if you believe and you will see the power of God, you will see impossible thing made possible. तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास करोगे तो असंभव चीजों को संभव होते देखोगे। Then this man cried out immediately. तो उस समय उसी इंसान ने He बहुत said, "Lord, have mercy on me. उन्होंने कहा मुझ पे दया करो, Forgive my unbelief. मेरे अविश्वास का उपाय करो, Forgive me." मुझे माफ करो। See, sometimes we didn't believe in God. कई बार हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। So if we done that, अगर हम ऐसे होते we हैं, need to repent. हमें पश्चाताप करने की जरूरत See, है। now this moment, this father was repenting. अब ये देखिए, ये पिता पश्चाताप कर रहा था। Repentance is very important. अब ये देखिए, पश्चाताप तौबा करना This बहुत जरूरी man है। didn't believe in Jesus. इस इंसान ने यीशु मसीह विश्वास That is नहीं why he cannot receive the miracle healing on this son. इस इंसान ने यीशु मसीह विश्वास नहीं किया और इस चमत्कार को नहीं पा पाया। If he believe and come to Jesus, he अगर वो will विश्वास receive. करके आता चमत्कार ले लेता, But he didn't believe. पर विश्वास नहीं करता That's है। why in that moment he was repenting. और इसलिए उसने उस समय तौबा करी। What is his repentance? किस तरह से तौबा करी? He said to Jesus, उसने यीशु से he कहा, cried out, यीशु को भी रोया "Please forgive my unbelief." कि मेरे अविश्वास का उपाय करो। Sometimes when you are unbelief in me, then miracle will not take कई place. बार आप पास्टर में अगर विश्वास नहीं करते तो चमत्कार भी नहीं होने वाला। See, this man bringing to disciple because he didn't believe. ये इंसान यीशु मसीह के पास नहीं लेके आया क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया था। He bring to disciple, but the son was not healing because he didn't have the belief. वो चेलों के पास लाया लेकिन वो चंगाई नहीं मिली, उसका विश्वास पूरा नहीं था। So now he is confusing.
तो अब वो खुद अंगीकार कर रहा है He said to this disciple at Jesus Christ, please forgive my unbelieving. और उसने यीशु से कहा मेरे अविश्वास का उपाय करो। Then what Jesus said? तब उसने यीशु से क्या कहा? And Luke decided, verse 25. आप देखिए 25वें वचन में, And then he said, please help my unbelief. उसने कहा मेरे अविश्वास का उपाय करो। And Jesus saw the people यीशु लोगों को देखा running together. कि साथ में भाग रहे हैं। And now what Jesus do? यीशु ने क्या कहा? He rebuked the spirit. उन्होंने उस आत्मा को डांट लगाई। He rebuked the deaf spirit. मृत्यु की आत्मा को भी डांट He लगाई। rebuked the dumb spirit. बहरेपन के और गूंगेपन की आत्मा को डांट लगाई। See, there is a way you pray to God. तो कभी-कभी हम परमेश्वर से प्रार्थना And करते हैं when some problem is happening और to कोई your life, परेशानी आपके जीवन में है, don't say, oh please pray, heal me like that. आप ऐसे बोलो परमेश्वर चंगाई दे दो, मैं आपकी बेटी हूँ। You need to rebuke the devil. कई बार आपको शैतान को डांट लगाना जरूरी है। Jesus was rebuked the devil. यीशु ने शैतान को डांट लगाई। Jesus didn't say, oh Father, heal this child. No. यीशु ने ऐसा नहीं कहा है परमपिता परमेश्वर इस बच्चे को ठीक कर दो। That's why when we pray, we say, in the name of Jesus, get out. इसलिए पासा ने प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह के नाम से निकल अभी। Then Satan, when you rebuke और शैतान Satan, निकलता भी है डांट खाकर। so now Jesus was rebuked the deaf spirit. ऐसे ही यीशु मसीह ने भी डांट लगाई। He was telling to the child, that the demons was inside the child. उसने जब यीशु मसीह ने जो बहरेपन और गूंगेपन की आत्मा ने उसको डांट लगाई। Jesus said to that, the devil inside the child, उस बच्चे के जो दुष्ट आत्मा थी उसको डांट you लगाई। deaf spirit, get out. तू गूंगेपन और बहरेपन की आत्मा निकल यहाँ से। You dumb spirit, get out. तू बहरेपन की आत्मा गूंगेपन की So आत्मा when निकल। Jesus rebuked them, जब यीशु मसीह ने उसको डांट and लगाई Jesus also rebuked them, and Jesus was telling them not to return again. और यीशु मसीह ने डांट भी लगाई और ये भी कहा कि दोबारा मत आना। Because sometimes कई बार when we see the video, जब मत्ती में देखते when हैं, demons were cast out, जब दुष्ट आत्मा को निकाला गया, they roam around. वो घूमती है निकलने के And बाद। if you are not filled by the word of God, और अगर आप में से कोई भी वो पवित्र परमेश्वर के वचन से भरा हुआ नहीं if है you are not grow in the Lord, और आप परमेश्वर में बढ़ नहीं if you are है not grow and coming to the church and fellowship with the God's people, और आप परमेश्वर के लोगों से संगति नहीं कर रहे और परमेश्वर आपके अंदर नहीं भरा हुआ है, when sickness are cast out, demons are cast out, your problems are healed, delivered, and now you are free. और आपके अंदर दुष्ट आत्मा निकाली गई, आपको छुटकारा दिया गया, आपको छुटकारा मिल गया। But the Bible says the demons that will cast out, तो बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा निकाली गई, you roam around and they will come and visit again. वो घूम घूम के आएंगे और देखेंगे अगर आप अभी भी खाली हैं तो आपके अंदर घुस जाएंगे। And the Bible says that person and demons will call the seven more than powerful, and they will call them and they will enter again. तो उन्होंने कहा कि जब वो घुसती है तो अपने साथ और भी आत्मा को लेके घुसती है। That is in Matthew, will say that demons will cast out and they will return. That's why Jesus here see that don't return again. तो यीशु मसीह ने कहा कि आप दुष्ट आत्मा जो निकाली हो दोबारा वापस मत आना। Jesus commanded the devil. यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांट He लगाई, rebuked the devil. डांट लगाई। I cast you out forever, never return मैं again. तुम्हें निकाल दिया है बाहर, अब दोबारा मत घुस जाना। And this child then immediately उसी समय Jesus said, get out, you deaf spirit, you यीशु ने deaf कहा spirit. निकल बहरेपन और गूंगेपन की आत्मा। Immediately that child was बाइबल healed. बताती है उसी समय वो आदमी ठीक हो गया। But that child when demons will come out, जब उस बच्चे में से दुष्ट आत्मा निकली, the child was kicked to the floor. उस बच्चे ने जोर की कूद लगाई। The crowd thought that this child is dead. भीड़ ने सोचा अरे तो मर गया, खत्म। See, sometimes when Satan want to go out, कई बार जब शैतान बाहर निकलना चाहता है they will be thrown out and they will be cut themselves, they will hurting the तो person. जिस शरीर के अंदर है उस शरीर को पहले दर्द देगा और फिर ही निकलेगा। This is sometimes when you see the demons want to go out, they will be, then we used to hold them, we used to see in our church. हमने अपनी कलीसिया में देखा है जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो कई बार वो आदमी इतना या औरत इतना चिल्लाती है, हाथ पैर मारती है, उसे पकड़ना पड़ता है। So now here also the same thing, this spirit, before he go out and he was pulled into the, submit to this side and throw out this side, and the side was just up. People thought that this side is there. जैसे दुष्ट आत्मा से निकली तो उसके शरीर को इतनी जोर की उसने फेंका ऊंचाई से कि लोग सोचा रहे भाई ये तो मर गया। You read there. And then verse 26. तो हम पढ़ते हैं 26 के अंदर लिखा है 25 to 26. 25-26। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने दुष्ट आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उसमें से निकल आ और उसमें कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। Verse 27. 27 में परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। Amen. See, before he got demons was, this man hurt very badly and
child is dead. तो दुष्ट आत्मा जब निकली तो उस आदमी के शरीर को इतनी जोर की फेंका कि लोगों ने सोचा कि ये मर गया, Because before he moved out from the body. क्योंकि जब वो आत्मा यहाँ बाहर निकली, Because Satan aim is that every plan of the devil is to kill us. शैतान का हमारे जीवन में सिर्फ एक ही योजना है, वो है हमें मार देना। Everything Satan come for to kill only you. शैतान सिर्फ आता ही है आपको और मुझे मारने के लिए। How? कैसे? Sickness also bring to kill बीमारी us. आएगी शैतान के द्वारा, Murder also to kill us. जब लोग खून करते हैं वो भी शैतानी करवाते हैं। Addiction, any kind of addiction also the end is to kill you. बुरी बुरी जब लतें लगती हैं, आदतें लगती हैं, उसका भी अंजाम क्या होता है आपको So मालूम है? every work of the devil is his aim. Main target is to kill your life. शैतान की हर एक जो मकसद है आपके जीवन का, उसका अंत सिर्फ मृत्यु होता है। That is how his work. उसका काम ही यही है। So now this man and the people thought that the crowd thought that oh Jesus cannot do this, child is dead. तो लोगों ने सोचा अरे यीशु बेचारा कर नहीं पाई, आदमी तो मर गया। So Jesus when he rebuked the spirit जब यीशु दुष्ट आत्मा को and the डांटा spirit was just put him down और वो very badly. दुष्ट आत्मा ने उस आदमी के शरीर को बहुत, बच्चे के शरीर को बहुत जोर की गिराया And people said, oh, you know, oh, this man, this child was dead. और लोगों को लगा अरे ये आदमी तो मर गए, But Jesus come and picked him up लेकिन यीशु उस बच्चे को उठाया and he gave to the Father. और पिता को दे दिया And everyone were amazed. और हर कोई बहुत ज्यादा अचंभित हो गया, How wonderful he अरे is. ये कितना महान काम हुआ। So here our God is so तो wonderful. हमारा परमेश्वर बहुत महान है। So now God give it to the Son to the Father. यीशु मसीह ने उस बच्चे को अपने पिता को पकड़ा दिया And now they left that place. और उस जगह को छोड़ दिया। And when they were there, और जब वो वहां थे, now when they come out from that place, Jesus healed the child and the child was given to the Father. They go home and everything done. आप देखें कि वो बच्चे के पिता आए, बच्चे को लेके आए, दुष्ट आत्मा निकल गई। अब यीशु मसीह सब लोग अपने अपने घर Then चले। when they are sitting alone, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अकेले बैठे हुए थे, disciple come to Jesus. अब चेले यीशु के पास आए। Guru, why we cannot cast out the demon? उन्होंने कहा गुरु, हमने प्रार्थना करी तो दुष्ट आत्माएं निकली, आपने करी निकल गई, ऐसा कैसे हुआ? हम भी विश्वास करते हैं, हम भी कुछ करते हैं. Then Jesus replied and Jesus give the answer. तब यीशु ने जवाब दिया कि तुम्हारी प्रार्थना करने से क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकली? That is the answer that Jesus giving to them in verse. You read 28 and 29. 28 और 29। जब वह घर में आया और उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, मतलब कि उपवास और प्रार्थना से नहीं निकल सकती। So now उसके in the beginning say demon, that spirit, the disciples cannot able to come out. तो चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए And that moment they were so ashamed. और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। And Jesus come and cast out. और यीशु मसीह ने आके निकाल And दी। Jesus also, scolding them, you careless generation. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये भी कहा कि तुम कितने अविश्वासी लोग हो। And now when they were privately, when they alone, अब जब वो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ अकेले बैठे होते हैं and he comes, they are talking to Jesus. और चेले यीशु के पास आके बात करते अरे हैं, we can't able to cast out, क्या हुआ? अरे हम क्यों नहीं कर पाए, बताओ क्या परेशानी Then है? Jesus explained. तो यीशु ने समझाया, See some spirit. कुछ आत्माएं बहुत ढीठ You होती हैं। need to pray hard and you need to take fasting so that spirit will go away. कई बार सिर्फ साधारण सी प्रार्थना से नहीं होता, आपको बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है और उपवास भी रखना पड़ता है उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। Sometimes your problems are not solved. कई बार आपकी परेशानी का हल नहीं आता, You are fighting the devil आप बहुत सबसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, and never go out. आदमी लड़ाई करने के बाद भी वो नहीं जा रही है, Then we also need to take तो fasting. हमें उपवास लेने की जरूरत है। So now Jesus was telling to the disciple, यीशु ने चेलों से कहा, because you cannot cast out this demon, तुम इस बुरी आत्मा को नहीं निकाल पाए because this demon is very wicked and very stubborn and very, disobedient. क्योंकि ये जो दुष्ट आत्मा थी, ये साधारण दुष्ट आत्मा नहीं थी, ये बहुत ज्यादा जिद्दी दुष्ट आत्मा थी और बहुत ही बुरी थी। So this kind of spirit you need requirement, double portion prayer, double portion fasting. तो ऐसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए साधारण सी प्रार्थना और साधारण उपवास नहीं चलता, लेकिन एक बहुत ज्यादा कठिन प्रार्थना और उपवास करना पड़ता है And also double portion faith in God, और विश्वास भी ज्यादा ही करना पड़ता so है that you can able to cast out. ताकि हम इसको निकाल पाए। So that is the thing. Sometimes things happen in your life cannot then fast. तो इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसको आप बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उपवास करें। So here this chapter God has given us a lesson. तो इस अध्याय से यहाँ पर परमेश्वर हमें एक चीज सिखा रहे हैं Faith is very कि important. विश्वास बहुत जरूरी है। Whoever come to God, we need to have faith. जो भी प्रभु के पास आता है, पहले उसे विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है। When you have faith, अगर विश्वास है
impossible thing can make तो possible. असंभव चीजें आपके जीवन में संभव होती जाएंगी। And the disciple, where they didn't have faith, they have strength and depend on themselves, they cannot able to cast out the demon. तो दुष्ट आत्मा को निकालने के चेले कोशिश तो कर रहे थे पर विश्वास नहीं था, इसलिए नहीं कर But पाए। in that moment, God come and help और them. जब उस समय यीशु मसीह आए And God come and protect the और disciple. अपने चेलों को बचाया And God didn't put them to ashamed the disciple. और उनकी शर्मिंदगी नहीं होने दी। So God is always standing in the gap of you, in front of the people, try to cast you, try to put you into shame, try to put you into persecuted. Don't be feel alone that you are alone. तो जब भी आप समाज के सामने, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार वालों के सामने खड़े होकर लोग मजाक उड़ाएंगे, आपको डांटेंगे या परेशान करके सताएंगे, तो कभी ये ना सोचिए कि आप अकेले, यीशु मसीह आपके साथ होता है। God is always with us. यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ He है। will never put you to ashamed. वो हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करने देते हैं, And He will always come and protect वो you. आगे हमेशा बचाते हैं। So now, here, if you really want to see in your life mighty, power, successful, good health, long life, peace, great men, and conquer the world, we need to have a faith. तो इसलिए अगर हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए, चमत्कार चाहिए, चंगाइयाँ चाहिए, उन्नति और सफलता चाहिए, तो सबसे पहली चीज है कि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। Because without faith, you can't do nothing. कि बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते। So faith in Jesus is very तो important. यीशु में विश्वास रखना पहले ये सबसे जरूरी है। But if you didn't have faith coming to so many times in church, nothing will happen. लेकिन अगर विश्वास नहीं है और आप कितने अनगिनत बार चर्च में आके बैठ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। But if you have faith in लेकिन God, अगर विश्वास है, even the little faith, एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, all your problem can go. तो आपकी सारी परेशानियां जा सकती हैं। God said that if you have a mustard seed of faith, you can move the mountain. यीशु मसीह ने कहा कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो पहाड़ों को हिला सकते It हैं। is not the reality about the mountain. असली में परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि सच में पहाड़ के सामने खड़े होकर बोलो साइड हो जाओ, साइड हो जाएगा। God is saying that if you have faith, परमेश्वर कह रहे हैं अगर विश्वास है, every problem that you have, आपके जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी, every struggle that you have, हर एक मुश्किल, that you can't able to do anything. कोई चीज जो आप नहीं कर पा रहे You think that this problem is too आपको much. लगता है परेशानी तो भाई बहुत Like है। a mountain for you. मेरे लिए तो पहाड़ बराबर है परेशानी। Like a mountain that you are, in front of you and you can't able to do anything. मेरे सामने परेशानी पहाड़ की जैसे खड़ी और ये हिलती नहीं है। But God said if you have a small mustard seed in faith in me, you can move out. लेकिन that यीशु problem. मसीह ने कहा कि अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखते हो तो उस पहाड़ को तुम हिला सकते हो। So here this chapter teaches us how to faith in God is very, very important. तो इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर में सबसे पहले विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। Without faith, you will never cast out demons. बिना विश्वास के आप कभी भी शैतान को नहीं निकाल सकते। Without faith, you will never receive healing. बिना विश्वास के चंगाई भी नहीं मिलेगी। Without faith, you will never receive blessing. बिना विश्वास के आशीष भी नहीं मिलेगी। Without faith, you will never enter to the kingdom of God. बिना विश्वास के परमेश्वर के राज्य में भी नहीं जाएंगे। So faith in Jesus. पहले विश्वास करें। Amen. आमीन। And we all let us pray together. तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। So today we see the faith, how much the power of faith and how much the fearless person can do. तो आज हमने देखा कि एक विश्वास होने से क्या होता है और अविश्वासी को क्या करना चाहिए।